ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च हरि ओम्। उठ जाओ। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। We are studying Canto 1, Chapter 15, Shlok number 5, verse 5. Arjuna uvacha vanchitoham maharaja shaharina bandhurupina yena me prahatam tejo deva vishmapanam mahat. Arjuna uvacha वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। अर्जुन उवाच वंचितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। Actually read the shloka. अच्छी श्लोका पढ़ो। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिण बन्धुरूपिण येन मे प्रहर्तमो तेजो देवो विष्मपनं महत्। अर्जुनोवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे प्रहतं तेजो देवविष्मपनं महत्। Word to word meaning. Arjuna uvacha. Arjuna said, Vanchitaha, left by him, aham, myself, Maharaja, O King Harina, by the personality of Godhead, Bandhu Rupina, as if an intimate friend, Yena, by whom, me, my, Apaharatam, I have been bereft, Tejaha, power, Deva, the demigods, Vishma Panam, astonishing, Mahat, astounding. Translation and purport by Sri Prabhupada. Arjuna said, O King, the Supreme Personality of Godhead, Hari, who treated me exactly like an intimate friend, has left me alone. Thus my astounding power, which astonished even the demigods, is no longer with me. क्या कह रहे हैं अर्जुन? जैसे युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे थे कि क्या कारण है. Finally, Arjun is saying, O King, जो भगवान हरि हैं, जिन्होंने मुझे अपने इतने करीबी इंटीमेट मित्र की तरह रखा, now he has left me alone. I have nowhere to go. He has just left me. Thus my astounding power, which astonished even the demigod, is no longer with me. इसलिए जो मेरी इतनी शक्ति थी मुझ में, जीवन देवताओं को भी अचंभे में रखती थी, मेरे पास नहीं है. And Lord is not here. I don't have my power. Or but in the Bhagavad Gita 10:41, the Lord says, anyone specifically powerful and opulent in wealth, strength, beauty, knowledge, and all that is materially desirable is to be considered but a product of an insignificant portion of the complete whole of my energy. No one, therefore, can be independently powerful in any measure without being endowed by the Lord. When the Lord descends into the earth along with his eternal, ever liberated associates, he not only displays the divine energy possessed by himself, but also empowers his associates, devotee, with the required energy to execute his mission of incarnation. तो
क्या बोले, जब भी भगवान धरती पे आते हैं, हाँ, वो ना केवल अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उनके साथ जो उनके एसोसिएट आते हैं वो ऑल्सो दे ऑल्सो पोजेस डिवाइन एनर्जी. हाँ, it is also stated in the Bhagavad Gita 4:5 that the Lord and his eternal associates descend to the earth many times. But the Lord remembers all the different roles of incarnation where the associate by Supreme will forget them. जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा था कि मेरे और तुम्हारे कई जन्म हुए हैं, मगर मुझे सारे याद है, तुम्हें नहीं याद है. तो Lord remembers all the incarnation, but the devotee forget. So he is the associate of Lord. Similarly, the Lord takes away with him all his associate when he disappears from the earth. The power and energy which were bestowed upon Arjuna were required for fulfillment of the mission of the Lord. जो अर्जुन के पास शक्ति थी, वो भगवान ने अर्जुन को क्यों दे रखी थी? क्योंकि वो जरूरी थी. क्या मिशन स्थापन करना था? धर्म को निकालना था, तो इसलिए अर्जुन was possessing those in power. But when his mission was fulfilled, the emergency powers were withdrawn from Arjuna, because the astounding powers of Arjuna, which were astonishing even to the denizens of heaven, were no longer required, and they were not meant for going back home, back to Godhead. तो क्या हुआ? भगवान चले गए, धर्म स्थापन हो गया, अब वो शक्तियों की जरूरत नहीं थी, तो वो शक्तियां भी अर्जुन से चली गई, क्योंकि वो भगवान धाम जाने के लिए नहीं चाहिए, तो जितने तक चाहिए थी तब तक रखी भी ले ली. If endowment of powers and withdrawal of powers by the Lord are possible even for a great devotee like Arjuna, or even the demigods in heaven, then what to speak of the ordinary living being, who are but a figs compared to such great souls. देखा, अगर बड़ी जो अर्जुन थे भगवान के सखे मित्र थे, उनको अगर शक्ति दी जा सकती, ली जा सकती है भगवान की इच्छा से, तो हम कौन ही हैं? तो हमारे जीवन में अगर कुछ आता है, लिया जाता है, तो हमारा क्या हक है? उस पर क्या कंट्रोल है बताओ? इट्स ऑल सुप्रीम पर्सन्स विल. हम तो है ही कौन? हाँ, और हम तो हमारे से कुछ छीन जाता है, अरे सब ले लिया मेरा, हम लोग तो भगवान को ब्लेम करना शुरू कर देते. बट इट्स एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम लॉर्ड, सो एवरीथिंग इज टेकन फ्रॉम हिम. उन्हीं का दिया हुआ वही लेके जा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, सब उन्हीं का ही दिया हुआ है ना. अगर आपको कोई चीज़ कोई देता है, सपोज मैंने आपको कुछ चीज़ें दे दी कि ठीक है आप इस्तेमाल करो, और कल को मैं वो चीज़ वापस लेके भी चली जाऊँ, तो आप मुझे ब्लेम क्यों करोगे कि लेके क्यों गए? मेरी थी, मैंने ले ली. सो वेयर इज द पॉइंट ऑफ लिमिटेशन? हाँ, अभी रिसेंटली आप लोगों ने वो सॉन्ग देखा माधवास का जो रिलीज हुआ, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया? किसने देखा? वो देखा किसी ने? पूजा माता जी ने देखा. और अक्षय तुमने देखा? डिड यू सी? Did you saw that song? The video released by Madhva? नहीं आता जी, नहीं, मुझे पता ही नहीं था. चलो नहीं देखा कोई बात नहीं, ट्राई. उसमें क्या संदेश होता है कि जैसे उनका जो पुत्र है वो मरता है, तो लास्ट में बोल के जाते कि जब करते रहना. कहने का अर्थ ये है कि उसमें भी ही वाज सेइंग, उन माता जी ने क्या रिप्लाई दिया दूसरे पर्सन को कि ये गोपाल का था, गोपाल ले गए, इट्स नथिंग टू लमेंट अबाउट. उन्होंने ही दिया था, वही लेके चले गए, तो उन्हीं की प्रॉपर्टी है. सिमिलरली देखो, इसको समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम आसक्त हो जाते हैं इन चीज़ों से, मगर ये अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जो भी चीज़ें हैं हमें मिलती हैं, ऐशो आराम या पैसा, धन दौलत, या मित्र, बंधु, सखा, परिवारजन, भगवान की कृपा है. ये सांसें भी भगवान की कृपा है कि हम ले पा रहे हैं. उनका बस चले तो कभी भी ले जाएं, तो ले जाएं, तो ले भी जाएं. उन्हीं की प्रॉपर्टी, हमारी तो है नहीं. क्या भौतिक जगत में हमारा कुछ है क्या? भगवान क्या कहते हैं? भोक्ताराम जगतप सम सर्वलोका महेश्वरम, सब कुछ तो मेरा ही है, मैं ही प्रोप्राइटर हूँ, इंजॉयर हूँ. हाँ, तो इसमें दिक्कत की क्या बात है? एवरीथिंग इज हिज. So if he takes away, that's his property. There is no point to lament about, है ना? रोने का कुछ चिंता ही नहीं, करना ही नहीं. तो उसी प्रकार से हमें चीजें समझनी चाहिए. The lesson is therefore that no one should be puffed up for his powers borrowed from the Lord. तो हम puffed up नहीं होना चाहिए, because we are whatever it is borrowed. भगवान के द्वारा ही दिया गया है. हाँ, the sane man should rather feel obliged to the Lord for such benefaction and must utilize such power for the service of Lord. तो जो सेन मैन है वो समझ पाते कि नहीं, जो भी मुझे सुविधा है भगवान की कृपा की मुझे मिली, और तो मुझे भगवान की सेवा में लगा. ठीक है,
ये बुद्धिमान व्यक्ति है, ना कि अरे मेरी है तो लेके कैसे जा सकते हैं। नो, वो गलत है। ठीक है, such power can be withdrawn at any time by the Lord. So the best use of such power in opulence is to engage them in the service of Lord. तो आपके पास अगर opulence है, बहुत ज्यादा धन दौलत है, तो पबदप मत हो जाइए कि अरे नहीं मेरे पास तो बहुत कुछ है। नो, भगवान ने दिया, भगवान की सेवा में लगाइए। तो कल को आपसे ले भी लेंगे तो आपको दुख नहीं होगा, अरे भगवान का था ले गए तो क्या हुआ। लाइक दैट वे आवर थॉट प्रोसेस शुड बी लाइक दैट। ठीक है, यस्य शना वियोगेन लोको हि अप्रिय दर्शन उक्थेन रहितो हि यशा मृतक का प्रोचयत यथा। I have just lost him, whose separation for a moment would render all the universes unfavorable and void, like bodies without life. क्या बोला? I have just lost him. क्या बोला कि मैं बस मेरे से चले गए वो. I just lost him. Whose separation for a moment would render all the universe unfavorable void, like bodies without life. कहते हैं उनका क्षण भर भी सेपरेशन पूरे विश्व में अनफेवरेबल खालीपन सा ले आया है, अनफेवरेबल सिचुएशंस हो गई हैं कि जैसे शरीर बिना जिंदगी के, बिना चेतना के शरीर में जान ही ना हो, मतलब ऐसा हो चुका है उनका क्षण भर का एक सेपरेशन होता है ना, व्हेन द बिलोवेड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लवर। हाँ, जब हमारा कोई बिलोवेड होता है उससे हम सेपरेट हो जाते हैं, सीम्स लाइक कि सांस ही नहीं आ रही, व्हेन वी आर सो मच इन लव। उसी प्रकार से खैर ये तो कंपैरिजन कुछ भी नहीं है, भगवान के साथ जो सेपरेशन है वो तो पूरे क्षण भर में ही पूरे विश्व में अनफेवरेबल सिचुएशंस ले आता है। Factually, for a living being, there is no one dearer than the Lord. The Lord expand himself by innumerable part and parcel as Swamsha and Vibhinamsha. लेकिन जो जीव आत्मा है उनके लिए जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो भगवान के सिवा कोई हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है, हमको पता नहीं, मगर सच्चाई यही है। जैसे कृष्ण बुक में जॉर्ज हैरिसन ने स्टार्टिंग प्रीफेस में लिखा है that everyone is looking for Krishna, some are aware, some are not। मतलब हर कोई ढूंढ कृष्ण को ही रहा है, मगर कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता है। और भक्ति में वो जान पाते हैं, क्योंकि देखिए everyone is looking for real happiness and real happiness is found only in relation with Krishna। तो जो लोग तो भगवान के संबंध में वो तो सही रास्ते पे टिक गए, तो जिनको नहीं पता उनकी तलाश जारी है, मगर वो माया में सुख ढूंढ रहे हैं जो कि उन्हें वहां मिलेगा नहीं, क्योंकि कृष्ण में ही उनकी जर्नी खत्म होगी। So that's all. Lord expand himself by innumerable part and parcels. This is Swamsha or Vibhinamsha. Paramatma is the Swamsha part of the Lord, where the Vibhinamsha part are the living beings. As the living being is the important, परमात्मा स्वांश है और जो जीवात्मा है उनको विभिन्न अंश कहते हैं भगवान के। As the living being is the important factor in the middle body, for without the living being, the middle body has no value. Similarly, without Paramatma, the living being has no status quo. Similarly, Brahman, or Paramatma, has no locus standi without the Supreme Lord Krishna. This is thoroughly explained in the Bhagavad Gita. They are all interlinked with one another, or independent factors. Thus, in the ultimate issue, the Lord is summum bonum, and therefore the vital principle of thing. ठीक है? यत् संशयाद्रूपदगेहम् उपागतनम् राजनं स्वयंवरमुखिस्मरादुर्वामदनं तेजो हृतं कालो मयभितश्च मत्सया सजीकृतेन धनुषाधिगदा च कृष्णा। क्या कह रहे हैं इसमें? Only by his merciful strength was I able to vanquish all the lusty princesses assembled at the palace of King Drupada for the selection of the bridegroom. With my bow and arrow, I could pierce the fish target and thereby gain the hand of Draupadi. तो अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि केवल भगवान की कृपा से, उनकी जो कृपा थी उससे जो मेरे में बल था, स्ट्रेंथ थी, जितनी भी लस्टी प्रिंसेस थी
मैं उनको क्या है, आई वॉज एबल टू वैंकिश एंड आई वॉज एबल टू सेलेक्ट द ब्राइड ग्रूम, मतलब द्रौपदी का जो स्वयंवर था वो जीत पाए। देखिए एक्चुअली क्या शर्त था, हरी बोल, आप जाओ यहाँ से। हाँ तो मैं क्लास ले रही ना मुझे। क्या होता है वहाँ पे, तो शर्त क्या रखी होती है कि नीचे जो जल में देखते हुए मछली भी घूमती रहेगी, जल में देखते हुए प्रतिबिंब उसका देख के आपको उसकी तीर में, आंख में तीर मारना है। हाँ, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, बड़े बड़े क्षत्रिय भी ऐसा नहीं कर पाते, बट इट्स कृष्णस ग्रेस। कहा जाता है कि भगवान की कृपा से अर्जुन वो मछली की आंख को भेद पाया था, ये तो पॉसिबल नहीं था। इट्स ओनली अर्जुन कृष्ण स्ट्रेंथ, भगवान की कृपा से अर्जुन कर पाए। तो अर्जुन वॉज मेमोराइजिंग, जैसे भी पिछले हमने पढ़ा कि भगवान की कृपा से, देखिए जो पार्षद भगवान के साथ आते हैं दे आर ऑल्सो एम्पावर्ड विद सम पावर, और जब भगवान चले गए तो पावर ले भी ली, तो मतलब उन्हीं की इच्छा से आपको शक्ति मिलती भी और ली भी जा सकती है। तो हर चीज़ के लिए भगवान के लिए कृतज्ञ रहना चाहिए कि जैसे मैंने बोला हमारे पास भी अगर कुछ है तो भगवान की कृपा है, कुछ तो हमारा तो है नहीं ना, एवरीथिंग इज लॉर्ड्स मर्सी। जो हम लोग सांसें ले रहे हैं या कुछ परिजन है या कुछ हम में क्षमता है तो भगवान की कृपा है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए ओह मैं तो बहुत टैलेंटेड हूँ, बट होल्ड ऑन, दिस इज द मर्सी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ये भगवान की कृपा है। उनकी कृपा नहीं होगी तो आपसे छीना भी जा सकता है, तो इस पे आप ज़्यादा घमंड मत करिए, बट बी ग्रेटफुल टू लॉर्ड, भगवान की कृपा है कि मुझ में ऐसा टैलेंट है, उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो यहाँ पे अर्जुन वही कृतज्ञ दिखा रहे हैं कि नहीं, अगर मैं वो मछली की आंख को भी भेद पाया तो भगवान की कृपा थी, और द्रौपदी को स्वयंवर में जीत पाया तो उन्हीं की कृपा है। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रपात बता रहे हैं द्रौपदी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ किंग द्रुपद। तो एक्चुअली उनका वर्णन है महाभारत में कि द्रौपदी कितनी सुंदर स्त्री थी, उनके जो बाल थे वो नीले रंग के थे, इट्स लाइक अ ब्लू कलर, ब्लूइश ब्लैकिश कलर, सो ऐसा उनका रंग था बालों का। और द्रौपदी का एक और नाम है कृष्ण, कृष्णा उनको कहा जाता है, तो मतलब कृष्ण की सखी भी माना जाता है एक तरह से। तो क्या रहता है कि शी वॉज यंग गर्ल, ऑलमोस्ट ऑल प्रिंसेस डिजायर्ड हर हैंड, जितने भी राज सॉरी प्रिंसेस मतलब यहाँ पे जितने भी जो और भी स्वयंवर के लिए राजकुमार आए थे जो उनको हरा पाए थे, जितने भी बहुत बड़े शक्तिशाली राजकुमार आए हुए थे, वहाँ पे करण भी था, करण को तो खैर पार्टिसिपेट ही नहीं करने दिया, दुर्योधना वॉज देयर, मैनी वर देयर, बट by Krishna's grace he was able to defeat all the princes. But Drupad Maharaj decided to hand over his daughter to Arjuna and therefore contrived a peculiar way. There was a fish hanging on the inner roof of the house under the protection of a wheel. जैसे मैंने बोला कि कंडीशन क्या था, मछली की आंख को भेदना, ठीक है, और नीचे पानी था जिसमें उसकी प्रतिबिंब को देखते हुए तीर निशाने पे लगाना था। तो महाराज द्रुपद को पता था कि ऐसा केवल अर्जुन या करण ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता, बिकॉज अगर कोई धुरंधर है तीरंदाजी में तो कौन है, अर्जुन है या तो करण है। बट स्टिल वो क्या चाहते थे कि जो मेरी पुत्री का हाथ है वो अर्जुन के हाथ में जाए। And in the assembly of princely order, when Drishtadumna, the brother of Draupadi, introduced all the princes to his grown-up sister, Karan भी था उस गेम में, but Draupadi tactfully avoided Karan as the rival of Arjuna, क्योंकि द्रौपदी को पता था कि करण टक्कर दे सकता है, तो करण को बोले कि तुम तो सूत पुत्र हो और सूत पुत्र इस स्वयंवर में भाग नहीं ले सकते, तो उनको तो वहीं से बाय बाय बोल दिया। और यहाँ पे उन्होंने अपने भाई को यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया इशारों इशारों में कि मुझे केवल कौन चाहिए, अर्जुन। She was unable to accept anyone who was less than a क्षत्रिय, और ये भी बता दी कि क्षत्रिय के सिवा किसी से विवाह नहीं करोगे। The Vaishyas and Shudra are less important than the क्षत्रिय, कि जैसे कि हम लोगों ने पीछे भगवद गीता में पढ़ा था कि जो हाई क्लास मैरिज है वो क्या है कि या तो दोनों का बराबर, लड़के और लड़के का सेम होना चाहिए, क्षत्रिय क्षत्रिय, ब्राह्मण ब्राह्मण, या वैश्य वैश्य, या शूद्र शूद्र, या तो जो लड़का है वो हाई क्लास का होना चाहिए, हाई क्लास का लड़का लो क्लास की लड़की चलेगा, मगर लो हाई क्लास की लड़की लो क्लास का लड़का नहीं चलेगा, दैट इज नॉट द प्रॉपर मैच, तो प्रॉपर मैच नहीं माना जाता, ठीक है। और यहाँ पे जैसे बोले कि वैश्य शूद्र को इतनी कम इंपॉर्टेंस दी जाती क्षत्रियों के आगे, तो कर्णा वाज नोन एज द सन ऑफ कारपेंटर शूद्र, सो द्रौपदी अवॉइडेड करना, बोले कि ये तो भाई सूत पुत्र है। एंड अर्जुना वाज ड्रेस्ड इन अ ब्राह्मण वेश, he is the difficult target, everyone astonished कि ऐसे कैसे हो गया,
But as usual, by the grace of Lord Krishna, he was able to emerge very successful in the princely fight. Thus gain the valuable hand of Krishna or Draupadi. इतना आसान नहीं था जैसे मैंने बोला भेद कर पाना, अगर भगवान की कृपा थी. Arjun was lamenting, remembering the incidents in the absence of Lord. By whose strength only he was so powerful. तो अर्जुन अभी शोक कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण अब जा चुके हैं, तो युधिष्ठिर महाराज के आगे बता रहे हैं. He was remembering all the time he spent with Krishna. जैसे बोला कि हम किसी व्यक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, तो जब हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति अब है नहीं, कि हम बहुत दूर चला जा चुका है, उस समय हमें उसका इतना रिमेम्बरेंस आता है. वी इवन रिमेम्बर द स्मॉल थिंग्स. अब जैसे किसी के साथ भी बैठे होंगे ना, तो कुछ खा रहे होंगे, अरे तुम्हें याद है उसको भी यही पसंद था. लेकिन एवरी टॉक यू रिमेम्बर दैट पर्सन. हाँ, कुछ बात भी करोगे, अरे वो भी ऐसे ही चलते थे, अरे उनको भी यही पसंद था. मतलब इन एवरी टॉक यू ब्रिंग दैट पर्सन. दिस इज कॉल्ड लव एंड अफेक्शन टुवर्ड वन पर्सन, जिसके प्रति बहुत प्रेम रहता है. हर क्षण हमारा स्मरण उस व्यक्ति पे रहता है. हाँ, अगर भौतिक जगत में भी हम ये चीजें देख सकते हैं, मगर वो काम वासनाओं पे निर्भर है, क्योंकि जो असली जो प्रेम संबंध है वो भगवान के साथ ही है. लव इज ओनली फॉर कृष्णा, नो वन एल्स. जो प्रेम है, इट इज यू नो लव एग्जिस्ट बिकॉज कृष्णा इज सो काइंड. अगर लव एग्जिस्ट भी कर रहा है तो कृष्णा की वजह से, एंड दैट लव इज ओनली फॉर कृष्णा. एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस? दैट इज टू लव कृष्णा. तो हमारी एग्जिस्टेंस का पर्पस ही भगवान कृष्ण को प्रेम करना है. किसी और व्यक्ति का नाम नहीं लिया गया. सो कॉल्ड स्पाउस और द पेरेंट्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नो. ऑब्वियसली उनके साथ हमारा लविंग डीलिंग होता है, मगर असल में जो संतुष्टि है, तृप्तता है, वो भगवान के साथ संबंध में ही प्राप्त हो सकती है. जैसे मैं दोबारा ये रिपीट कर दूं, अभी मैंने पहले भी रिपीट किया कि कृष्ण बुक में प्रीफेस में जॉर्ज हैरिसन ने लिखा है कि हर व्यक्ति भगवान कृष्ण को ही ढूंढ रहा है. एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्ण. सम आर अवेयर ऑफ इट, सम आर नॉट. मतलब जो तो कृष्ण भक्ति में भगवान के साथ संबंध में है, सेवा में है, दे आर एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस, वो आनंद का अनुभव कर रहे हैं. मगर जो लोग नहीं है, उनकी तलाश अभी भी जा रही है. इस लड़की में नहीं मजा आ रहा, दूसरी को पकड़ लिया. कितनी तो शादियां कर ली, कितने डाइवोर्स हो गए, बट नो वेयर दे आर हैप्पी. कितना पैसा कमा लिया, कोई संतुष्टि नहीं है, क्योंकि कृष्ण इज द रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर. हाँ, रसिका शेखर कहा जाता है भगवान को. तो केवल जो हमारा संबंध उन्हीं के साथ में है. तो अर्जुन का जो प्रेम है वो एक्चुअल में प्रेम है. एंड ही वाज रिमेम्बरिंग, और भगवान की अभी एब्सेंस में बोल रहे की जो शक्ति थी उन्हीं की वजह से थी. एंड नाउ आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग. सो ही वाज लमेंटिंग अबाउट इट. Okay, we can read one more verse. Yatsanidham yukandavam ganidam indram च साम्रागणं तार्श विजित्तया लब्धा सभामा कृतभूतशिल्पमाया दिग्भयो हरन्रे पतयो बलिं अधावरेते. Because he was near me, it was possible for me to conquer with great dexterity the powerful king of heaven, Indradev, along with his demigod associates, and thus enable the fire god to devastate the Khandava forest. And only by his grace was a demon named Maya saved from the blazing Khandava forest. And thus we could build our assembly house of wonderful architectural workmanship, where all the princes assembled during the performance of Rasuya Yajna and paid you tributes. तो एक समय जंगल में क्या हुआ, सूर्यदेव को काफी भूख लगी थी. So he started up eating the whole forest. हाँ, मतलब आग लग गया था जंगल में. So that time अर्जुन, कृष्ण एंड अर्जुना ने उस फॉरेस्ट में जितने भी एक जीव आत्माएं थी सभी को बचाया भी, और जो माया दानव था उसको ही बचाया था उस फॉरेस्ट फायर में. और तब वो माया दानव ने इनके लिए क्या है ये असेंबली हॉल बनाया था, जिसका नाम हमने पीछे पढ़ा था. क्या नाम था उसका? शोभ्रम. आई फॉरगॉट द नेम, बट देन माया दानव ने ये आर्किटेक्चर उनके लिए बनाया था. तो अर्जुन वाज रिमेम्बरिंग दिस पास्ट टाइम आल्सो, कि आपकी कृपा से हम वैसा भी कर पाए, वह जो देवगण है उनकी जो एंजाइटी थी उसको भी मिटा पाए. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू. The demon Maya Dana was an inhabitant of the forest Khandava. When the Khandava forest was set on fire, he asked protection from Arjuna.
कि माया दानव उसी जंगल में था, सूर्यदेव जैसे मैंने बोला, तो उनके अग्निदेव के प्रभाव से तो पूरा जो जंगल है वो जलना शुरू हो चुका था। तब उन्हें अर्जुन से डायरेक्शन मांगी थी, तब अर्जुन ने उनकी मदद की थी। एंड ओ दानव वाज ऑब्लाइज्ड, और इसलिए उन्होंने इनके लिए क्या है एक असेंबली हॉल निर्मित किया था। They felt the supernatural power of the Pandavas. Thus, without grudge, all of them submitted and paid tributes to the emperor. The demon possess wonderful and supernatural power to create material wonders, but they are always disturbing elements of the society. The modern demon are the harmful material scientists who create some material wonders for disturbance in the society. देखिए पहले भी दानव लोग जो होते थे वो हमेशा देवताओं के लिए क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, मगर पांडवों का इतना बल था कि वन माया दानव वाज ऑब्लाइज्ड टू सर्व पांडवस, उनको सर्व किया। अगर हमारे जो भौतिक जगत के जो डीमन है, राक्षस हैं, कौन है? साइंटिस्ट लोग जो हर समय नया आविष्कार करते हैं मगर सोसाइटी में डिस्टर्बेंस ही पैदा करते हैं और कुछ नहीं करते। हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं, मगर क्या ज़रूरत है उसकी? अगर सब लोग शांति से कृष्ण भावना में तौर पे रहें तो न्यूक्लियर वेपन का ज़रूरत ही नहीं है। न्यूक्लियर वेपन्स आर देयर, तो इसीलिए जैसे हिरोशिमा नागासाकी ऐसे इंसिडेंसेस भी होते हैं। हाँ, देखिए जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूँ, हमारे भारत में जो गन है वो लाइसेंस्ड वे में इतनी आसानी से नहीं मिलती है। ठीक है, घर घर में तो गन नहीं होगा, जो राजपूत लोग हैं शौकिया तौर पे रखते हैं, मगर हर व्यक्ति के घर पे अगर आप बोलो कि गन है लाइसेंस इतना इजीली अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, मगर विदेश में फॉर एग्जांपल इन यूएस जो गन है उसका लाइसेंस बहुत इजीली अवेलेबल है, और कई लोग मतलब इन इलीगल वे आल्सो इट्स वेरी इजी टू कीप द गन। लोगों के पास गन काफी मतलब रहता है लोगों के पास में। हाँ, तीसरे लोगों में इनटॉलरेंस है, लेकिन हम लोगों को गुस्सा आएगा, हम लोग क्या करेंगे? एक दूसरे को गाली निकाल देंगे, चपाट मार देंगे, मतलब हाथापाई होगा ना ज्यादा से ज्यादा। ये तो नहीं कि मरने मार गोली गोली मार देंगे, नहीं, क्योंकि घर पे है नहीं, है ना। तो जिस चीज का ज्यादा एक्सेसिबल है पीपल आर इजी टू यूज दैट। तो यूएस में क्या होता है, पीपल आर वेरी इंटॉलरेबल, कुछ भी छोटी सी बात है गन निकाला डिश खत्म। अभी पीछे एक इंसिडेंस हुआ था ऑस्टिन में कि एक शॉपकीपर ने मतलब वहां पे बोला कि मास्क लगाइए आप लोग कि कोरोना है। वहां पे दो कंपल्शन नहीं है, बट द स्टोर कीपर दे सेड कि प्लीज वेयर द मास्क, अदरवाइज देयर इज नो एंट्री इनसाइड, आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन द पर्सन जस्ट शूटेड आउट द शॉपकीपर वेंडर, गोली मार दिया उसको बस इस कारण से। तो आप लोग देख सकते हो क्योंकि इतनी जल्दी चीजें अवेलेबल है। तो उसी प्रकार से न्यूक्लियर वेपन इज नॉट नीडेड, मगर रखा है तो ठीक है, फिर कहीं ना कहीं इसको उड़ाना भी, लगाना, मारना भी है कहीं पे। सो दैट्स हाउ द chaos इन द सोसाइटी। हाँ, तो माया वाज आल्सो मटेरियलिस्टिक लाइक दैट। तो ये सॉरी इस तरह से किया, तो जो माया दानव था वो भी भौतिकवादी था, मगर he was well known in the creating the wonderful things, and yet Lord Krishna wanted to kill him. When he was chased both by the fire by the wheel of Lord Krishna, he took shelter of such a devotee as Arjuna, who saved him from the wrath of the fire of Lord Krishna. अब क्योंकि ये दानव था और भगवान तो है ही परित्राणाय साधुनाम विनिष्कृतनाम दुष्कृतनाम, क्या है कि जो डीमन लोग हैं उनको मारने के लिए हैं, तो भगवान आग भी थी और भगवान का चक्र भी था। तभी कहते हैं ना भगवान के भक्त बड़े कृपालु होते हैं भगवान से भी। माया दानव ने किसकी शेल्टर ली? अर्जुन की, जिसकी वजह से वो क्या हुआ, बच पाया। तो इसलिए जैसे बोला है कि डिवोटीज आर देयर फॉर मोर मर्सीफुल देन द लॉर्ड। हाँ, कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान से ज्यादा कृपालु है, more merciful than the Lord, and in devotional service the mercy of devotee is more valuable than the mercy of Lord. जैसे भगवान कहते हैं मेरा जो भक्त है वो मेरा भक्त नहीं है, मगर जो मेरे भक्त का भक्त है, आदि पुराण में भगवान अर्जुन को कहते हैं, मगर जो मेरे भक्त का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो मतलब भगवान भी इंडिकेट करते डायरेक्ट मेरी सेवा करोगे कोई फायदा नहीं है, बेटर यू सर्व माय डिवोटी। मेरे भक्त की सेवा करोगे तो कुछ बन सकता है तुम्हारा, नहीं तो नहीं हो सकता। आप लोग देख सकते हो एवरी डे इन आवर इस्कॉन फर्स्ट ऑफ ऑल वी रिसाइट द प्रेयर्स ऑफ गुरु अष्टकम, हम गुरु के लिए प्रेयर गाते हैं। और इट्स एन लाइक क्या है गुरु अष्टकम, इट्स लाइक वी नॉट सिंगिंग कृष्णा's prayer, no, we are singing the prayer to our guru. Because of him we are मोह अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजना शलाकया, बिकॉज अंधकार से वो हमें यहाँ पे लेके आए हैं। हाँ, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज का इंसिडेंट था, नरसिम्हादेव जब हिरण्यकश्यप को मारा तो प्रहलाद महाराज को बोला चलो अब हमारे लोक में चलो, you're eligible candidate।
तो प्रहलाद महाराज ने क्या बोला था? He said, My dear Lord, I am obliged to my spiritual master, कि मेरे जो गुरु है नारद मुनि, उन्होंने मुझे अंधकार से निकाला। मैं तो कहाँ राक्षस लोगों में के बीच में पैदा हुआ हूँ, कुछ पता नहीं, अज्ञानी हूँ, मगर मेरे गुरु ने कृपा करके मुझे इस अज्ञानता से निकाला, आपकी भक्ति में लगा, तो मैं उनके प्रति कृतज्ञ हूँ, तो मैं उनके मिशन में हेल्प करना चाहता हूँ। I don't want to go to there. So means the devotees are more merciful. There are many pastimes in story. भगवान जैसे साउथ इंडिया में एक डिवोटी थे, he was serving the Lord Vardharaj. लॉर्ड वरदराज को स्पेशल पर्सनल सेवा कर रहे थे, चामा डुलाते थे। हाँ, और शाम के समय में अंधेरा हो जाता था, क्योंकि तो एक व्यक्ति था, एक और भक्त था, तो वो ये जो भक्त भगवान की सेवा करते थे, इनको रोज लालटेन लेके तो उनके घर छोड़ने जाते थे। तो अब ये जो भक्त थे भगवान के इतने इंटीमेट थे कि उनसे बातें भी किया करते थे। तो लोगों को पता चला तो वो अपने सवाल इनके पास रख देते थे, बोलते भगवान से पूछना तो हमें बता देना। बोला ठीक है। तो एक बार ये जो दूसरा भक्त इनको छोड़ने जाता था लालटेन लेके इनके घर तक शाम को, तो इनको पूछा कि क्या पूछा उनको बोला कि आप पूछोगे इनको जरा कि मैं कैसे मतलब कैसे मैं भगवत धाम कब जाऊंगा कैसे। तो भगवान ने उत्तर दिया, बोला ये तो इसी जन्म में जाएगा। बोला अच्छा, कहते फिर मेरा क्या? हाँ, भगवान बोला तुम्हें कई जन्म लगेंगे। बोला क्यों? बोला क्योंकि तुमने किसी मेरे भक्ति की सेवा नहीं की। बोले मैं तो पर्सनल सेवा कर रहा हूँ। कहते नहीं, मेरे भक्ति की सेवा नहीं तो किसी काम के नहीं हूँ। मतलब द सर्विस ऑफ द लॉर्ड डिवोटी इज मोर वैल्यूबल। सो बहुत तो क्या हुआ, तो अर्जुन वाज एबल टू गिव द शेल्टर टू दिस माया डीमन। तो डीमन फीलिंग ऑब्लाइज्ड टू अर्जुन, वांटेड टू डू सम सर्विस, तो इसलिए उन्होंने उनके लिए एक असेंबली हॉल बनाया था। ठीक है। सो लॉर्ड कृष्णा हाउएवर बीइंग प्लीज्ड विद माया for his taking shelter of a devotee asked him to render service unto king Yudhishthira by building a wonderful assembly house. तो भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए थे क्योंकि उसने अर्जुन की सेवा की। The process is that by the grace of the devotee the mercy of Lord is obtained. देखो कितनी अच्छी लाइन है कि भगवान के भक्तों की कृपा से भगवान की कृपा मिलती है। And by the mercy of Lord a chance to serve the Lord devotees obtained. The club of Bhimasen was also a gift of Maya Danav. तो जो भीष्म देव के पास वो जो क्लब है गदा, वो भी माया दानव का दान है। तो भक्तों की कृपा से भगवान मिलते हैं और भगवान की कृपा से भक्त मिलते हैं। तो इन शॉर्ट डिवोटीज मर्सी इज वेरी मच रिक्वायर्ड टू प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस, अदरवाइज दिक्कत है फिर। ठीक है। ओके, सो विल स्टॉप हियर। सो कुछ समय है हमारे पास, तो आप में से किसी का कोई प्रश्न है या कोई कुछ कहना चाहे, प्लीज गो अहेड। यस, हरे कृष्ण। किसी को कुछ कहना है? हाँ जी, किसी का कोई सवाल है, कुछ रियलाइजेशन, एनीथिंग? Okay, if nothing then we can stop here. So, but it's a very wonderful verses to do read again. So let's chant the times Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much. See you all in the evening for Bhagavad Gita. Hare Krishna.